have seen this particular program, that a program where we have to check whether a number is positive or negative. ये हमने last class में देखा था using only if statement, right? If statement is a conditional statement जो हमने last class में देखा था. But अगर मुझे वापस से आपको समझाना हो, so if statement जो है, if statement is a concept in C which is used to write whenever you have to check any condition. कि अगर आपको कोई कंडीशन चेक करनी है अपने प्रोग्राम में, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ दैट कंडीशन व्हाट डिफरेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम यू वांट टू एग्जीक्यूट, तब मैं यूज करूंगा इफ स्टेटमेंट. इट इज वेरी सिंपल लॉजिक. जैसे हम लोग घर के बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग रेनी सीजन और मॉनसून, suppose whether to carry an umbrella or a raincoat with you, what do? You just look outside the window and you check whether it is cloudy or it is raining. If it is cloudy or it is raining, you carry your umbrella. अगर नहीं है, suppose if it is a sunny day or it's a clear day, you don't carry. So depending upon the situation, depending upon whether it is cloudy or rainy, you decide whether to carry an umbrella or not. वैसे ही in C statement, depending upon a condition, आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या पार्ट एग्जीक्यूट करना है और क्या पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है. सो दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन सी इज कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट. और ऐसे काफी सारे कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसमें से पहला इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन इफ स्टेटमेंट. अगर सिंटैक्स देखना हो, सो दिस इज एन एग्जांपल जिसमें इफ, जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा होगा, इफ इज अ कीवर्ड. इफ लिखा जाता है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में आपको कंडीशन लिखी जाती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट एक्सप्रेशन, because this expression gets calculated before it is getting decided कि मुझे इस particular part में आना है या नहीं आना है. And ये जो curly bracket open and close है, this identifies the if block. So if block will only get executed only when this condition is true. अगर if के सामने की condition true होती है, तभी मेरा if block execute होता है. अगर मेरी condition false होती है, तो मैं if block में execute ना करते हुए ये पूरी की पूरी तरह से ignore हो जाएगा, and I'll go to the next instruction, which is here. So in this particular case, when I have to check whether a number is positive or negative or zero, so मुझे पता है कि now there are three conditions. So three conditions के हिसाब से मैंने यहाँ पर तीन if statement लिखे. That first of all we have included two header files. Then in void main we have declared one variable num. Then after clearing the screen, I have asked the user to enter the number, and we have scanned the number using scanf. And the expression is %d ampersand num. %d because the variable is integer, इसीलिए format specifier %d होता है, and the variable name is num, और उसके सामने हमने ampersand लगाया है. Next, after getting the number, I need to check for three conditions कि क्या number greater than 0 है, क्या number less than 0 है, क्या number exactly equals to 0 है. So if the condition of num greater than 0 is true, I will print the number is positive. If the num less than 0 is positive, if it is true, then I'll print the number is negative. And if the expression num is exactly equals to 0 is true, then I'll print num is 0. And आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि एक वेरिएबल की वैल्यू एक बार में एक ही होगी. अगर मैं num की वैल्यू 10 देता हूं, तो obviously only this condition will remain true because 10 is greater than 0. So ये print हो जाएगा, number is positive. But when यहाँ पर वो comparison आएगा, that 10 is less than 0, the condition false हो जाएगी. So this particular block will get ignored. Then I'll go to the third expression where again the same variable num, जिसकी current value 10 है, it gets calculated where 10 is exactly equals to 0. So answer वापस से हो जाएगा कि it is false. So ये line भी print नहीं होगी. This we have seen in the last class, but we have also discussed what are the disadvantages or drawbacks of if statement. One of the biggest drawback is कि एक ही वेरिएबल को हमने इस प्रोग्राम में कितने बार कंपेयर किया है? 3 times. 1 is here, number 2 is here, and number 3 is here. Right? 3 बार हमने इसको कंपेयर किया है. सो सिंगल वेरिएबल गेट्स कंपेयर्ड 3 times. इट्स नॉट अ वेरी फेवरेबल कंडीशन. तो क्या हमारे पास कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसमें नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो जाए और हमारा आउटपुट एग्जैक्टली सेम आए? सो द आंसर इज यस. हमारे पास दूसरा है विच इज इफ एल्स. So the answer to that question is हमारे पास एक if else statement है.
इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये है कि इसमें दो ब्लॉक्स होते हैं, एक इफ ब्लॉक होता है और एक एल्स ब्लॉक होता है. द एग्जाम्पल दैट जस्ट नाउ आई हैव गिवन यू, the example that I've just now given you, कि whether it is cloudy or rainy, you have to carry an umbrella. If it is cloudy, if it is cloudy, you will carry an umbrella. If it is not, you won't. So if condition true हुई तो आपने कुछ decide किया, if condition false हुई तो आपने कुछ और decide किया. So if else statement भी वही है. The syntax is, इसमें पहले आपको लिखना पड़ता है if, which is a keyword. Syntax is कि इसमें पहले आपको लिखना पड़ता है if, which is a keyword, then condition expression आता है. अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका if ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और else पार्ट जो है आपका इग्नोर हो जाता है. बट if the condition is false तो आपका जो if ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि आपका else ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. इट इज वेरी सिंपल. ओके, सो कैसा लिखा है यहाँ पर, कंडीशन कितने बार चेक हुई, ओनली वन. इफ के बाद हमने कंडीशन लिखी है और ये कंडीशन यहीं पे चेक हो गई है. ठीक है, सो ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, दिस इज माय इफ ब्लॉक. यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो देखो मैंने कमेंट करके यहाँ लिख दिया है, दिस इज माय इफ ब्लॉक, राइट. और एल्स, जैसे ही एल्स के बाद आपने ये कर्ली ब्रैकेट शुरू किया है, दिस इज माय, दिस इज माय एल्स ब्लॉक. सो एल्स ब्लॉक कहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया. सो एज इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम आई हैव 3 कंपैरिजंस. तो मैंने क्या किया है, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स है, तो वो प्रिंट कर देगा नंबर इज पॉजिटिव. लेकिन अगर नेगेटिव है और एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है, सो दोनों कंडीशन मैंने एल्स ब्लॉक में लिख दी है. अब यहाँ पर मैंने 2 और कंपैरिजन कर दिए कि इफ द नंबर इज लेस देन 0 तो नंबर नेगेटिव होगा और ये पर्टिकुलर पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. लेकिन अगर मेरा नंबर 0 है, सो दिस विल गेट नॉट एग्जीक्यूटेड, दिस विल गेट इग्नोर्ड एंड दिस विल बी प्रिंटेड. इसको मैं एक बार आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड. Suppose I am entering a negative number, it is giving me the output that the number is negative. For example, I am entering a positive number, it is giving me the output the number is positive. And if suppose I am entering exactly 0, it is giving me the number is 0. अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैंने ये क्यों किया है, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है क्या, एल्स में मैंने 2 इफ क्यों लिखे हैं? एल्स में मैंने 2 इफ इसीलिए लिखे हैं बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 0 को कंपेयर करना चाह रहा हूं तो 0 कंपेयर करने के लिए इफ एल्स में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. इफ एल्स विल ओनली डील विथ 2 कंडीशन. अगर सही है तो इफ, गलत है तो एल्स. लेकिन हमारे पास 2 की बजाय 3 कंडीशन है, इसलिए दूसरी और तीसरी कंडीशन हमने एल्स ब्लॉक में लिखा है. ठीक है यहां तक? सर यस सर, इफ के जगह फिर हम लोग एल्स नहीं लिख सकते थे, जैसे इफ एल्स किए फिर एल्स, इफ एल्स जैसे इफ एल्स फिर नम 0 इज इक्वल टू जो 0 है वहां पे एल्स नहीं लिख सकते थे फिर? यहाँ पे कह रहे हो आप, यहाँ पर हाँ नहीं, सी में क्या होता है, I'll tell you. देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ. आपका बोलना ये है कि ऐसा ना, हाँ, अगर else इज इक्वल टू 0 इफ, मतलब देखो अभी जैसे आपने ये किया है कि अगर मेरा नम ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, सो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा मेरा नंबर, सो दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड. ये पूरा इग्नोर हो गया, विच इज राइट. अब जब एल्स में हम यहाँ पे इफ एल्स लिख रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो ट्रू, विच इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट कि हम लोग को समझना है, विच इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ एल्स. नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक के अंदर एक लिखना. अब देखो ये छोटा सा अगर मैं पोर्शन देखूं यहाँ पर, सो दिस इज ऑल्सो इफ एल्स स्टेटमेंट कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ये एग्जीक्यूट होगा और एल्स पार्ट इग्नोर हो जाएगा. इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इफ पार्ट जो है वो इग्नोर हो जाएगा.
बट ये छोटा वाला जो इफ एल्स है ये हमने कहाँ लिखा है, एक बड़े वाले इफ एल्स के एल्स ब्लॉक में लिखा है। जैसे हमारे अगर डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देना हो तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, बॉक्स इनसाइड अनदर बॉक्स, वैसे ही दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ एल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपको समझना है, कोई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो टर्म विच इज नेस्टेड इफ एल्स, ये होता है वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया था अभी तक, एल्स ब्लॉक के अंदर दो इफ लिखे थे। अब आपने सजेस्ट किया कि एल्स के अंदर दो इफ ना लिखते हुए और एक इफ एल्स लिखो, सो ये भी सपोर्ट करता है और ये भी आपको एग्जैक्टली सेम आउटपुट देता है। अब ठीक है, यस सर। कैसा है सी लैंग्वेज। और बेसिकली मैं प्रोग्रामिंग की अगर बात करूँ ना, प्रोग्राम्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे अगर मैं डे टू डे लाइफ में अगर आपको बोलता हूँ कि आपको कॉलेज आना है घर से, ठीक है, सो स्टूडेंट वन कैन टेक हाईवे लेके वो आ सकता है, बाईपास लेके आ सकता है, कोई एक शॉर्टकट लेके आ सकता है, बट इवेंचुअली ऑल द स्टूडेंट्स विल रीच। मतलब मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम मेरा सेम है, बट डिफरेंट डिफरेंट लोगों का उसको सॉल्व करने का अप्रोच अलग है। प्रोग्रामिंग भी कुछ ऐसी ही चीज है कि एक प्रोग्राम आप 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स एक ही प्रोग्राम को 10 अलग तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा वास्ट है और इतनी ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट्स है कि आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है मैंने जो ये प्रोग्राम इतने बड़े लाइंस में लिखा है, आप में से कोई इसको और शॉर्टर नंबर ऑफ लाइंस में लिख सकता है और आउटपुट भी एग्जैक्टली सेम आएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इफ एल्स के अंदर मैंने दो इफ लिखे हैं और एक नया कॉन्सेप्ट है नंबर 3 विच इज नेस्टेड इफ एल्स, यानी तीसरा कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा। पहला है इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट और थर्ड है नेस्टेड इफ एल्स। कहने का मतलब अगर मुझे ये इफ के अंदर भी इफ एल्स लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां आपको समझा देता हूं, सॉरी। यानी अगर मुझे इफ के अंदर भी ऐसे लिखना हो, ठीक है, इफ के बाद यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद यहाँ पर इफ ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एल्स और यहाँ पर उसका एल्स ब्लॉक, तो ये भी आपके सी में सपोर्ट करता है। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जैसे हमने नीचे इफ एल्स के अंदर हमने लिखा है इफ एल्स ब्लॉक, अब मैंने क्या किया है, देखो ये मेरा इफ ब्लॉक है, यहां से लेके यहां तक मेरा इफ ब्लॉक है। इस बड़े वाले इफ ब्लॉक के अंदर मैंने और एक इफ एल्स स्टेटमेंट कर दिया। ये मेरा इफ का इफ ब्लॉक है और ये मेरे एल्स का एल्स ब्लॉक है। ये भी सपोर्ट करता है। अब ये हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस हो। जैसे यहाँ पर दो से ज्यादा 3 कंडीशन थी, तो हमने क्या किया, दो कंडीशन को इफ एल्स में एडजस्ट किया और तीसरी कंडीशन को एल्स के अंदर इफ एल्स में एडजस्ट किया। अगर वहां पे 4 कंडीशन है तो हो सकता है कि एक कंडीशन में इफ में एडजस्ट करूंगा, एक एल्स में एडजस्ट करूंगा और बाकी की दो इफ एल्स के अंदर और एक ब्लॉक में मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये शायद आपको नहीं समझ में आए, बट हम लोग ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जहां पे आपको नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम ही लिखते हैं जिसमें हमको नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें किसी और को डाउट है क्या, एक बार पूछ लो। Does anyone have any doubt? मेरी आवाज आ रही है, कनेक्शन चला गया क्या? आवाज आ रही है सर। ओके, सो बेसिकली जस्ट मिनट, ये हो गया था हम लोगों का इफ स्टेटमेंट, ये भी डिस्कस किया था। ये फ्लो चार्ट मैंने ऐड किया है, तो ये मैं बताता हूँ आपको। और दिस इज द फोर्थ पार्ट। अभी तक हम लोगों ने 3 चीजें देख ली है। वन इज इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड इज नेस्टेड इफ एल्स और ये है चौथा लैडर इफ एल्स। ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब लैडर का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर मैं पूछूं तो इट्स सीढ़ी। सीढ़ी कैसी होती है, इस तरीके से होती है, राइट। एक हमारे पास नया इफ एल्स स्टेटमेंट है। नया हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इसके पहले जो थर्ड वाला हमने डिस्कस किया है ना, नेस्टेड इफ एल्स,
कि इफ के अंदर और एक इफ एल्स, एल्स के अंदर और एक इफ एल्स, ये नहीं समझ में आता है किसी को, कि बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। तो ये सीडी की तरह एक इफ एल्स स्टेटमेंट है जो बहुत सिंपल होता है कि यहां से शुरू करना है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ कंडीशन चेक करूंगा, अगर यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं यहाँ आऊंगा, फिर यहाँ पे भी कंडीशन चेक करूंगा, अगर कंडीशन वापस से फॉल्स हुई तो मैं यहाँ पे आऊंगा, वापस से कंडीशन अगर सपोज फॉल्स हुई तो मैं यहाँ चेक करूंगा, यहाँ ट्रू हो गई तो मैं सीढ़ी से उतर जाऊंगा, भले ही फिर मेरी सीढ़ी कितनी भी यहाँ पे अगर खत्म हो रही है, तो जहां मेरा कंडीशन ट्रू हुआ मैं वहां पे अपना एग्जीक्यूशन को रोक दूंगा। दिस इज सिंपल लैडर इफ एल्स। ठीक है, वो कैसे वर्क करता है देखो। लैडर इफ एल्स है, स्टार्ट कहां से होगा, इफ से ही होगा। सो एज यू कैन सी इट स्टार्टेड विथ इफ, उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जो भी मुझे कंडीशन चेक करना है मैं वो चेक करूंगा, और उसके बाद मैं लिखूंगा इफ ब्लॉक। इफ दिस कंडीशन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ट्रू, तो मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ऊपर वाला उसने बोल दिया तुम। यहाँ पर मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद का जितना भी मेरा पोर्शन है एल्स तक, वो पूरा का पूरा इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गलती से अगर मेरा ये टेस्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है, तो मैं यहां से डायरेक्टली चला जाऊंगा नेक्स्ट एल्स इफ में। देखो अब मेरा जो कीवर्ड है वो चेंज हो गया, अभी तक क्या था, इफ और एल्स, बट लैडर इफ एल्स में इफ के बाद जब मैं एल्स लिखता हूं तो उसके बाद और एक इफ आता है विद अ स्पेस। सो ये एक नया कीवर्ड है, इफ एल्स इफ, और जैसे ही इफ आता है तो हमको पता है इफ के सामने हम कंडीशन लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ कंडीशन, उसके बाद इफ ब्लॉक। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो मैं लिखूंगा एल्स इफ अनदर एक्सप्रेशन, अगर ये ट्रू होता है तो इसका एल्स इफ ब्लॉक, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्स इफ ब्लॉक, ये एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये बाकी का पूरा इग्नोर हो जाएगा। बट इन केस ये भी अगर फॉल्स होता है तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो इग्नोर हो जाएगा, एंड आई डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट एल्स इफ ब्लॉक। नेक्स्ट एल्स इफ ब्लॉक में और एक एक्सप्रेशन है, इसको चेक करूंगा, अगर ये ट्रू हो गया तो ये वाला एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी का पूरा इग्नोर हो जाएगा। लेकिन गलती से अगर ये भी मेरा एक्सप्रेशन फॉल्स होता है, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट एल्स इफ ब्लॉक। आप देखोगे यहाँ मैंने डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब मैं कितने भी एल्स इफ ब्लॉक यहाँ पर लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक माई लैडर। लैडर का एग्जाम्पल वापस से बता रहा हूँ, लैडर मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज माई स्टेयरकेस, यहाँ पर मैं एक कंडीशन चेक करता हूँ, इफ इट इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, पहले ही अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं अपने लैडर से उतर जाऊंगा। बट इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, आई विल स्टेप डाउन टू अनदर लैडर, मैं यहाँ पे चेक करूंगा एक और कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं वापस लैडर से उतर जाऊंगा, बट नहीं होती है, कंडीशन फॉल्स आई, देन आई विल अगेन स्टेप डाउन टू अनदर कंडीशन। सो इसी तरीके से ये लैडर कितनी भी बड़ी हो सकती है, कब तक, जब तक आखिरी कंडीशन में लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ एल्स। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ना कि यहाँ पर कोई एल्स इफ है। ठीक है, जो लास्ट ब्लॉक है लैडर इफ एल्स में, वो होता है एल्स ब्लॉक, और आखिरी में आपको लिखना पड़ता है एल्स ब्लॉक, ये है आपका आखिरी। कहने का मतलब, अब इसमें मेरे पास अगर किसी एक्सप्रेशन के अगर 10 कंडीशन के 10 आउटपुट क्यों ना हो, कि उसकी वैल्यू 1 है तो कुछ और, उसकी वैल्यू 2 है तो कुछ और, उसकी वैल्यू 3 है तो कुछ और, तो मैं डिफरेंट एल्स, डिफरेंट इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ ब्लॉक करके लिख सकता हूँ, एल्स करके। अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट ये देखते हैं फ्लो चार्ट, तो आपको समझ में आएगा। लैडर इफ एल्स का फ्लो चार्ट, माय प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, if the condition is true, what I'm doing, I'm executing the if statement block, and directly मैं बाहर आ जा रहा हूँ next statement में। but if this condition is false, तो मैं else if condition check कर रहा हूँ, और if this condition is true, तो मैं उसका else if block number 1 execute करूंगा, and then directly I am coming out of my loop. Again, if this is false, then I'm checking another condition. If it is true, then I'll execute my if else block. If it is again false, then I can go to the next else if, and यहाँ पर देखो जनरलाइज कर दिया है कंडीशन n, ये डॉट 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 आइडेंटिफाइज कि यहाँ पर मैं कितने भी else if ब्लॉक लगा सकता हूँ। आई कैन अप्लाई और आई कैन राइट n नंबर ऑफ else if ब्लॉक, और अगर सारे ही कंडीशन फॉल्स 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 होते चले गए तो आखिरी में क्या अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, else ब्लॉक। यहाँ पे कोई कंडीशन भी नहीं है, बिना किसी कंडीशन के I'll execute my else block and I'll go to my next statement. ये थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? यस सर। So एक प्रोग्राम ले लेते हैं हम लोग,
प्रोग्राम ले लो, राइट डाउन अ प्रोग्राम, राइट। अगर आप लोग नोटबुक्स कैरी कर रहे हैं तो प्लीज राइट अ प्रोग्राम, राइट अ सी प्रोग्राम, राइट अ सी प्रोग्राम, write a C program to demonstrate ladder if else. Write a C program to demonstrate ladder if else to specify grade according to the marks given. Write a C program that demonstrate. Write a C program to demonstrate ladder if else statement to specify grade according to marks given. According to marks given. मैंने इसको सेव कर दिया है marks डॉट सी करके, ठीक है। आपको प्रोग्राम में ही दिया हुआ है ये, that if mark is greater than or equals to 75, ये क्वेश्चन में ही दिया है, if the mark is greater than or equal to 75 then it is distinction, आपको ये प्रिंट करना है। if your mark is in between 60 and 75, 60 और 74 कर लो बिकॉज ये चला गया, 60 और 74 के बीच में है तो आपको डिस्प्ले कराना है फर्स्ट क्लास। इफ द मार्क इज इन बिटवीन 50 and 59 तब सेकेंड क्लास। इफ द मार्क इज in between 40 to 49 then passed, or if it is less than 40, if it is less than 40 then आपको बताया है फेल। क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। यानी क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम एंड वी हैव टू आस्क द यूजर how many marks did he get, and he has to enter a marks in between 0 to 100, not more than 100, and depending upon the value inputted by the user, if the user inputs like 75 or 78 then you have to print distinction और बाकी कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अगर सपोज किसी भी रेंज में इसकी वैल्यू आती है तो वही आउटपुट आना चाहिए, राइट। सो नाउ इफ आई आस्क यू, अगर मुझे इफ स्टेटमेंट की तरह इसको लिखना पड़ेगा तो कितने सारे इफ लिखने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली आई वोंट यूज इफ। अगर मुझे इफ एल्स यूज करना है देन आई कैन यूज इफ एल्स, बट आई हैव टू यूज नेस्टेड इफ एल्स, कि इफ के अंदर इफ एल्स या एल्स के अंदर इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। सो द बेस्ट idea or the best way of writing this kind of program is to use ladder if else, कि आप ऊपर एक कंडीशन से शुरू करो कि if the test statement, if the value is greater than equals to 75 then distinction, अगर नहीं है then else, if it is greater than 60 then first class, else if it is greater than 50 then second class, else if it is greater than 40 then passed, और आखिरी में else करके हम लोग फेल प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो जिनको समझ में आ गया they can start writing the program, और आई एम गिविंग यू द प्रोग्राम हियर ऑल्सो। इसमें लिखते हुए किसी को कोई भी दिक्कत है तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस डायरेक्टली। आई एम टेकिंग द वेरिएबल int m for marks. Then I have to ask the user enter the marks obtained. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ it has to be in between 0 to 100.
हाँ, मैं यहाँ पे शुरू करूंगा मेरा लैडर इफ एल्स। So this is a simple program where you can see I have started with if. अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, तो कर्ली ब्रैकेट हम इग्नोर कर सकते हैं जब हमारे ब्लॉक में सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट हो। जैसे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इफ में ब्लॉक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा इफ ब्लॉक इज दिस दैट आई एम ओनली प्रिंटिंग अ सिंगल लाइन, सो देन यू कैन चूज टू राइट और इग्नोर कर्ली ब्रैकेट्स। बट अगर एक से ज्यादा लाइन है तब आपको मस्ट है कि आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं। बट जैसे हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन है तो आई कैन इग्नोर द कर्ली ब्रैकेट्स। बट अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट अगर सिंगल लाइन है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। दिस इज जस्ट logic that suppose if my block has only one line, then you can choose to ignore writing curly brackets open and curly brackets close. ठीक है, तो बस हमको अभी बस प्रोग्राम में देखना है और जो मेरी कंडीशन है उस हिसाब से हमको else if ब्लॉक्स लिखते हुए जाना है। और लास्ट वाला है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा एल्स में कि अगर कोई भी कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब द वैल्यू इज लेसर देन 40, which means the user has or the student has failed the examination, और मुझे else ब्लॉक में वो लिख के मेरा यहाँ पर प्रोग्राम खत्म कर देना है। प्रोग्राम खत्म करने के पहले we have a habit of writing ch और like this। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है कि हमने ऐसे इतने सारे if और else if और यही कंडीशन क्यों लिखी? If anybody has any doubt? एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आई एम कंपाइलिंग द प्रोग्राम विद अल्टर F9, zero warning, zero errors, and I'm executing it. For example, if I'm entering 75, so I'm getting distinction. That means my program is giving me the correct output. दूसरे भी देख लेते हैं, क्या पता। Suppose 64, right? First class. For example, 52, second class. Which was the next? Suppose 42, then passed. Then suppose 39, then I failed the exam. Clear है? यस सर। सर Yes. हम लोग को हर बार प्रोग्राम रन कराना पड़ता है, एक ऐसा नहीं हो सकता जैसे आउटपुट हम डाले फिर एक ही बार में सारा चेक कर ले? देखो, अगर आपको वैसा करना है ना, उसके लिए भी हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके सी में। ठीक है, विच इज जो हम लोग आगे देखेंगे, एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है जो लूप में चलता है। आपका कहने का मतलब है माय प्रोग्राम नीड्स टू बी कंटिन्यूअसली रनिंग अप टिल जब तक मैं उसको एग्जिट ना करूं, राइट? और जितनी भी कंडीशन है मैं चेक कर लूं, राइट? तो ऐसे भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग आगे देखेंगे। एंड रही बात दूसरी जो आपका बोलना है कि क्या सारे प्रोग्राम्स ऐसे हो सकते हैं या नहीं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, और सी इज वेरी बेसिक। ठीक है, तो उतना ज्यादा फंक्शनैलिटी इस पर्टिकुलर टर्बो सी में हमारे पास नहीं है, इसलिए एवरी टाइम आई हैव टू रन द प्रोग्राम एंड आई हैव टू चेक। ठीक है, वो डिपेंडेंसी है। ओके सर। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज आप प्रोग्राम में थोड़ा भी कोई चेंज करते हैं तो आपको सेव करने के बाद उसको कंपाइल करना है। अगर आप कंपाइल नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली रन कर रहे हैं तो प्रीवियसली सेव्ड प्रोग्राम का वर्जन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो सपोज इफ यू हैव चेंज्ड द लाइन, सपोज यू हैव करेक्टेड एन एरर, देन यू हैव टू सेव, देन यू हैव टू कंपाइल एंड देन यू हैव टू रन द प्रोग्राम अगेन। ठीक है, अभी इसी प्रोग्राम को आप लोग इफ एल्स से लिख के देखो तो
आ जाएगा क्या आप लोगों को? दिस इज लाइक योर वर्क टू डू एट होम, आप आराम से इसको लिख के देखना। सेम प्रोग्राम, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट टू। आपको ऊपर प्रोग्राम दिख रहा है, राइट अ सी प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम के एग्जाम में भी आ सकते हैं। इफ अगर आपका पेन एंड पेपर वाला प्रोग्राम एग्जाम हुआ तो आपको ऐसे प्रोग्राम्स आ सकते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको ऐसे ही छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। एंड yes, अगर आपको याद होगा that what we have discussed, that you have to write the program and then you have to write the output also। ठीक है, आउटपुट भी हमको लिखना है। तो अगर एग्जाम में आपको इसके लिए आउटपुट देना हो तो आप कोई भी 2 या 3 केसेस के आउटपुट दे सकते हैं कि केस 1 व्हेन द यूजर हैज एंटर्ड 78 तो डिस्टिंक्शन आया, केस 2 व्हेन द यूजर हैज एंटर्ड सपोज से 52 तो सेकंड क्लास लिख के आया, एंड केस 3 व्हेन यूजर हैज एंटर्ड सपोज से 39 सो फेल्ड प्रिंट हुआ है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम लोग को ये जो प्रोग्राम्स बचे हुए हैं बाकी के, वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, ये हम लोग लिख लेते हैं। नाउ जस्ट गिव मी एन आइडिया, व्हिच स्टेटमेंट डू यू यूज फॉर द सेकंड वन? नंबर डिविजिबल बाय 5 के लिए आप इफ यूज करोगे या इफ एल्स यूज करोगे या नेस्टेड यूज करोगे या फिर लैडर यूज करोगे? इसके लिए if else, we'll use only if else because either the number is divisible by 5 or not। तो आप if में चेक कर लोगे क्या होगी कंडीशन। फॉर एग्जांपल माय वेरिएबल इज सपोज इंट num, इसमें मैं अपना वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, तो मेरे if की क्या स्टेटमेंट हो जाएगी? if का क्या कंडीशन लिख सकता हूं मैं? if num, कैसे चेक करोगे? mod 5 is equal to 0, that mod 5 exactly is equals to 0, हम ऐसा लिखेंगे, which is exactly correct because जब हम num को mod 5 करते हैं that means this particular expression is calculating the remainder, and if a number gets divided by 5 gives me the remainder equals to 0, that means this condition is true, that means my number is divisible by 5। तो मैं यहाँ पे if में print कर दूंगा print the number is divisible by 5, else में obviously I'll print the number is not divisible by 5। that is correct। then next is accept 2 integers and check if they are equal or not। इसको हम कैसे करेंगे? अगेन सपोज आई हैव 2 नंबर्स n1 एंड n2, मैंने इसको स्कैन कर लिया एंड आफ्टर दैट if n1 is equal to n2 print, if n1 is exactly equals to n2, ठीक है, ये दोनों exactly अगर सेम है तो मैं प्रिंट करूंगा that both are equal, else मैं लिख दूंगा कि both are different numbers। ठीक है, then write a program to check whether a number is even or odd। my variable name is num, yes, even or odd के लिए क्या है कि if the number is exactly divisible by 2 then this number is even, right, else the number is odd। odd। so आपको क्या करना है, whenever you see a program you have to remember or you have to just apply your logic, which statement do I need to use? Do I need to use only if statement? Do I need to use if else? Do I need to use nested if else? or do I need to use ladder if else? ठीक है, so आपको ये सारे प्रोग्राम्स अभी करने हैं। take a screenshot, let me clear the ink, right, take a screenshot of this and write all the programs by yourself। इसमें किसी को भी दिक्कत है, इसमें से कोई भी प्रोग्राम अभी करके चाहिए तो मैं अभी लिख के दे सकता हूँ। Does anyone want any program? I take that as an answer as no। ठीक है, तो इसमें हम लोग और एक प्रोग्राम लिख लेंगे। राइट अ प्रोग्राम लिख लो आप लोग, राइट अनदर प्रोग्राम, जो ये काफी बार आता है एग्जाम में। राइट अ प्रोग्राम इन सी, write a program in C to compare 2 numbers, write a program in C to compare 2 numbers, write a program in C to compare 2 numbers
whether they are equal, comma, greater or lesser than in comparison. Whether they are equal, greater or lesser than in comparison. Full stop. इसको आपको तीनों तरीके से लिखना है और चारों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग. सो उसमें लिखो यूजिंग नंबर 1 इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 इफ एल्स स्टेटमेंट, नंबर 3 नेस्टेड इफ एल्स एंड नंबर 4 लैडर इफ एल्स. ये सेम प्रोग्राम आपको चारों स्टेटमेंट्स में लिखना है. ठीक है. Sir, repeat question. Write a C program. Write a C program. Write a C program to compare. Write a C program to. एक second. Where is it? Write a C program. Write a C program to check whether two numbers are equal, comma, greater or lesser than in comparison. Over. Equal, greater or lesser than in comparison, full stop, using if statement, number 2 if else statement, number 3 nested if else statement, and number 4 is ladder if else. Over, sir. हाँ, ये पहला है. अगर मैं इसको इफ स्टेटमेंट की तरह यूज करके लिखना चाहूँ तो विद इन 2 मिनट्स मैं ये आपको लिख के दे देता हूँ, सो दैट यू विल गेट द टेम्पलेट एंड यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट. बहुत सिंपल सा है. Suppose I am taking two variables n1 and n2. I'm asking the user to enter two integer numbers and I'm scanning them up using scanf. 2%d, %d, then ampersand n1, comma, ampersand n2. Then if n1 is exactly equals to n2, then I'm printing both are equal. ऐसा लिख सकता हूं मैं. If n1 is greater than n2, then I have to print, suppose %d is greater than %d. What I am doing here is I want to print the values कि भैया n1 और n2 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. Then suppose if n1 is lesser than n2, then again %d is lesser than %d, n1 comma n2. ये जो printf में लिख रहा हूँ इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, I guess? No, sir. No, sir. So there were only 3 comparison, whether both numbers are equal, whether number 1 is greater than number 2 or number 1 is lesser than number 2. So मैंने तीनों comparison के लिए 3 if statement लिख दिए हैं और तीनों के लिए क्या print करना है वो भी लिख दिया है. So will this program give me the correct output? इसमें कोई changes लग रहे हैं क्या आप लोगों को? ठीक है. So इसको हम लोग execute कर लेते हैं, then we are done for the day. And जो बाकी का है using if else, nested if else and ladder if else और बाकी के programs you try writing by yourself. कुछ भी execute नहीं होता है. So in the next class tomorrow we'll discuss it. और else अगर execute हो जाता है then we'll directly move to the
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड जस्ट टू टेल यू, वी आर ऑलरेडी एंटर्ड आवर यूनिट नंबर 3। ये कंपैरिजंस वाला जो है ये यूनिट नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग यूनिट नंबर 3 में ऑलरेडी जा चुके हैं। यूनिट नंबर 2 का एक बड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है विच इज ऑपरेटर्स, बट वो बहुत सिंपल सा है, वो हो जाएगा इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस। Suppose if I am entering values 10 and 20, so 10 is lesser than 20, the output is correct, yes. Then suppose I am executing that first number is greater, second number is lesser, so 20 is greater than 1, the output is correct, yes. And Yes. Yes, sir. last is suppose 10 and 10 both are equal. Okay, so this is the way the program works, and here I'm going to wrap my class, and if anybody has any questions you can shoot away. Sir, there is some general question I want to ask. Yes, please. सर जैसे कि हम ये अभी जो अपने यानी जो होमवर्क दिया है जिसके प्रोग्राम लिखने के लिए, तो सर हाँ। हम ऐसा कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं है जिसमें हम चेक करते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो सकता है? हाँ, आप मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट काफी सारे एप्लीकेशंस हैं अभी एंड्रॉइड ऐप के जिसमें आपको सी के जो ऐसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। व्हाट आई विल डू, आई विल चेक 1 और 2 और मैं ग्रुप में आपको डाल देता हूँ, ठीक है। या फिर Okay, बाकी स्टूडेंट्स, इफ देयर आर एनी स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी यूजिंग सम ऑफ द एप्स, दे कैन आल्सो सजेस्ट द नेम्स टू योर फेलो मेट्स। ओके सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। एक्चुअली आई हैव यूज्ड 1 और 2 एप्स बट आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं देख के एक बार कंफर्म करके आई विल श्योरली टेल यू। यस सर। एनीबॉडी एल्स? ऋषभ हैज सजेस्टेड वन टर्बो क्रोइड, ठीक है। अच्छा, वन जनरल क्वेश्चन, बाकी के टीचर्स आपके अटेंडेंस ले रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके,